So there is doubt in question number 11. I just solved that. Last day I gave you one hint. Okay, fine, no problem. If you could not solve, I'll solve this sum once again. So ध्यान देना. So last day I had asked you all to apply the formula of cos 2a. And what is the formula of cos 2a? It is 2 cos square a minus 1. Cos 2 alpha का formula 2 cos square alpha minus 1. Now eliminate the bracket in the numerator. You will find that 1 gets cancelled. So what is left? 2 cos square a minus 2 cos square alpha. Take 2 common from the numerator. And apply a square minus b square formula. What is a square minus b square? It is a minus b into a plus b. So as a result, we find that cos x minus cos alpha gets cancelled. Is this clear, everyone? And then we are going to integrate the remaining expression, the remaining integrand by separating the terms. So let us separate the terms and then integrate. Okay. What is the integration of cos x? It is sin x. Now tell me, everyone, cos alpha is a constant or a variable? Tell me. Yes. So what is the integration? Yes. What is the integration of constant dx? It is constant into x. And finally plus. Is this clear, everyone? Constant into x plus c. जिसका डाउट था क्लियर हुआ? Okay, copy लेना फटाफट. Now do you have any doubt in number 1? कोई डाउट है किसी का नंबर 1 में? नहीं है. अब हम लोग नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. फटाफट कॉपी लो. ट्वेंटी 21 बोला था कोई? 21 शायद. 1 का 20. ओके. यस.
वेरी एकदम करेक्ट। कॉट में माइनस नहीं होता, तो टैन में होता है माइनस। योर कंसेप्ट इज करेक्ट, योर कंसेप्ट इज करेक्ट, बट तुम ये फॉर्मूला में जो है ना माइनस नहीं होता कॉट का, तो सम आई मीन लॉजिक इज करेक्ट दैट वो हाफ आता है, उसका डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल आता है ना, यही तो क्लियर कर लेते हैं। नाउ नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग को रैशनलाइज करना है, देखो एक बार। So first let us rationalize this, okay? Because in this form integration is not possible. So let us rationalize this first. So let's rationalize the denominator. Okay, so we have, so let us multiply numerator and denominator both by square root of x plus 3 plus square root of x plus 1. Because clearly you find that denominator is of the form a minus b into a plus b. I'm sorry, it's plus 3. So what is a minus b into a plus b? It is a square minus b square. A square minus b square. And numerator will be square root of x plus 3 plus square root of x plus 1. इसका स्क्वायर रूट आई मीन इसका रूट हटा दो, तो ये हो जाएगा x plus 3. I mean eliminating the bracket also. I think this समझ में आ जा रहा होगा. I mean मैं रफ में लिख देता हूँ. X plus 3 minus of x plus 1. If you open the bracket, you get x plus 3 minus x minus 1. Okay. This is x plus 3 whole to the power half. And this is x plus 1 whole to the power plus half. Now x gets cancelled. 3 minus 1 is how much? 2. तो ये 2 का half बाहर आ जाएगा. And we have x plus 3 whole to the power half plus x plus 1 whole to the power half. अब हम लोग अलग अलग टर्म्स अलग अलग करके इंटीग्रेट करें, ये हो जाएगा हाफ x plus 3 whole to the power half dx plus half integration of x plus 1 whole to the power half dx. All right. Now can you tell me what is integration of x plus 3 whole to the power half? बताओ तो एक बार कैसे इंटीग्रेट करें, आप बता सकते हो तुम? यस, हाउ टू इंटीग्रेट x plus 3 whole to the power half? यस, बताओ. यस, my voice is not audible to you. वेरी गुड. हाँ, यू हैव टू रिस्पॉन्ड दिस वे, ओके? बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभी बीच में आवाज आना तुम लोग का बंद हो जाता है, तो ऐसे करके मैं जब बोलूंगा तो रिप्लाई करना. x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? x टू द पावर n plus 1 by n plus 1 into जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया है x plus 3, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1. 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1. इफ यू मल्टीप्लाई देयर विल बी नो चेंज. x plus 1 whole to the power n plus 1 divided by n plus 1. Okay, उसके बाद x plus 1 का differentiation will be 1. If you multiply its reciprocal, there will be no change. ठीक है, 3/2 3/2 ऊपर चला गया, 2 कैंसिल हो गया. दिस इज क्लियर एवरीवन? कॉमन. और कोई डाउट है किसी का? आगे बढ़ते हैं नंबर 2 में, फटाफट बोलो. ठीक है ना, हम नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं. फटाफट कॉपी करो. अरे
अभी बढ़ लेना नंबर 2 का। 2 एकदम मतलब बहुत कम से कम इसमें मुझे 15 मिनट लग जाएगा समझाने में एक साथ। तो एक बार 2 नंबर लिख लो। Now tell me everyone. See everyone, just I want your attention. Integration of tan x is minus log of mod cos x or log of mod sec x. Alright everyone. Integration of cot x is log of mod sin x. Clear? Now just tell me one thing everyone. What is integration of tan of x plus a plus cot of x plus b? And can you integrate? My second question is, can you integrate tan of x plus a into cot of x plus b plus 1? I repeat once again. These are the two questions. Now I want answer from your side. Tell me, what is integration of this expression and what is integration of this expression? Tell me. अगर इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे तो बता दो सर, अभी जितना आपने कंसेप्ट बताया उसके हिसाब से ये नहीं हो पाएगा या ये नहीं हो पाएगा। अगर होगा तो आंसर बताओ, बोलो इसका आंसर क्या होगा, बताओ। यस, क्या बोल रहे हो तुम लोग? इंटीग्रेशन में पूछ रहा हूँ, डिफरेंशिएशन नहीं। आई एम आस्किंग इंटीग्रेशन नॉट डिफरेंशिएशन। तुम डिफरेंशिएशन बोल रहे हो, पता है। यस बोलना एक बार। Yes, students, anyone who can try. What is integration? देखो, इसका आंसर होगा माइनस लॉग ऑफ नॉट cos ऑफ x प्लस है, करेक्ट। और x प्लस का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। 1 का इंटीग्रल क्या होगा? 1। इफ यू मल्टीप्लाई 1 देन इट विल चेंज। cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log ऑफ नॉट sin है, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या इसको इंटीग्रेट कर पाओगे तुम लोग? बताओ तो, जितना अभी तक तुमने सीखा है उसके हिसाब से क्या ये पॉसिबल है? Yes, it is not. Yes, exactly. It is not possible because you are finding product of tan and cot function. बट यही अगर चीज तुम लोग देखो, नीचे प्लस है तो बहुत इजीली इंटीग्रेट हो पा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म में इंटीग्रेट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अब ध्यान से एक बार सुनना, एक बार मैं जो ये सब चीज समझा रहा हूं ना, ये सब काम आएगा, ध्यान देना एक बार। नेक्स्ट, अब एक बात बताओ तुमको, नेक्स्ट, कैन आई इंटीग्रेट x into sin x का इंटीग्रेशन? सी, can I do the integration of this expression by keeping x outside? Yes or no? Tell me. Can I do this? Can I keep x outside? Yes. No, not possible. Why? Because just देखो एक बात ध्यान से नोट करना, ये x कांस्टेंट थोड़ी ना है, x तो वेरिएबल है। How can I keep x outside? I cannot keep x outside. This is not possible. वही अगर x की जगह पे 2 रहता, कांस्टेंट होता तो 2 बाहर रख सकते थे और हम लोग sin को इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर x है तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो नाउ नोट डाउन एवरीवन। कैसे अब एक बार इस पे दिमाग लगाना, ध्यान देना। मैं क्या करूंगा, देखना एक बार। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका एंगल को न्यूमरेटर में पहले लिख देंगे। ना आप एक बात बताओ तुम लोग, क्या हम लोग 1 की जगह पे अपने मन मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते। हम लोग एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो a by b है तो हम ऐसे लिख सकते हैं a plus 2 minus 2, कोई दिक्कत नहीं है। b plus 3 minus 3 एग्जैक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ी ना a की जगह पे a plus 2 लिख देंगे तो हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ मैंने 1 की जगह पे x plus alpha और x plus बीटा लिखा, एक बार सुनना ध्यान से। और अब मैं तुम लोग को
यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा हूँ, प्लस का और माइनस का। तुम बताना एक बार तुम मुझे कि मैं यहाँ पे ऐड करूं या माइनस करूं, बता। फिर साइन शुड आई गिव इन बिटवीन, प्लस और माइनस? टेल मी, थिंक एंड देन कैन यू एक्सप्लेन मी द रीजन फॉर दिस क्लियरली? कोई एक जान बताओ, बोलो। वेरी गुड। देखो अगर हम यहाँ पे माइनस साइन लेंगे, सुनना एक बार, माइनस साइन लेंगे तो फायदा क्या होगा? हाँ एग्जैक्टली, माइनस साइन लेंगे तो फायदा क्या होगा? एक्स कैंसिल हो जाएगा और वन की जगह पे आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा इज अ कांस्टेंट, और उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 बाय अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। बट वही अगर हम यहाँ पे प्लस दे देते तो आ जाता है 2x प्लस अल्फा प्लस बीटा। ये वेरिएबल हो, ये वेरिएबल है, तो ये हटाने के लिए हम जो डिवाइड करते हैं वो इंटीग्रेंड के अंदर आ जाता है। समझ में आने लगी हमको? वो इंटीग्रेंड के अंदर आता है और फिर इसको इंटीग्रेट करना इज नॉट पॉसिबल ना। देखो एक तो पहले क्वेश्चन है जिसको इंटीग्रेट करना है, और हम लोगों ने क्या किया, एक और प्रॉब्लम क्रिएट किया। क्या किया? वन की जगह पे ये लिख दिया, ये तो बीच में प्लस डाल के और डिवाइड कर दिया। देखो एक तो प्रॉब्लम दिया गया था और एक और प्रॉब्लम हमको क्रिएट कर दी। हम लोग का टास्क क्या है? प्रॉब्लम को सॉल्व करना, not to make it complicated, not to create another problem. Are you understanding what I'm saying? ये क्वेश्चन दिया गया, एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे तो फिर सॉल्यूशन कहां मिलेगा? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस नहीं देंगे, बीच में माइनस साइन देंगे। इसका कारण क्या है माइनस साइन देने का? इफ यू गिव माइनस साइन इन बिटवीन, x gets cancelled and you get alpha minus beta. Alpha minus beta is a constant, और वो कांस्टेंट हटाने के लिए हम लोग अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड करेंगे। समझ में आया सबको? यस एवरीवन, नाउ लिसन। अब हम यहाँ पे एक बार, अभी सम कंप्लीट नहीं हुआ, सम बहुत बाकी है। देखो ध्यान से, सिर्फ तुम्हारा वन की जगह ये दे देने से कुछ फायदा नहीं है। अब मैं तुम लोग से दो ऑप्शन पूछता हूँ, एक साइन और दूसरा कॉस। मतलब मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, इसके मतलब इसके पहले जो फंक्शन है वो हम साइन लें या कॉस लें? तुम लोग सोच के बताना है। ठीक है, वो भी पूछेंगे तुम लोग से क्यों, एक बार पहले लिख लेते हैं सो दैट इट इज क्लियर टू यू। बहुत ही अच्छा समय है मेरे को, ये वन ऑफ द मतलब फेवरेट समय है मेरा, और काफी बढ़िया लॉजिक है। मैं डायरेक्ट चाहता था तो सब बता सकता था, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट ही बताया सो दैट तुम्हारे दिमाग में पूरा एकदम छप जाए कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। लेट अस अप्लाई साइन ऑफ a minus b का फॉर्मूला। साइन ऑफ a minus b का फॉर्मूला होता है sin a cos b minus cos a sin b। और cos ऑफ a minus b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। ओके एवरीवन, अब एक बात बताओ, देखो ध्यान से ना, एक बार इसको इसे स्प्लिट करते हैं, इसको इसे स्प्लिट करके दिखा दे, समझ में आ रहा है? देखो एक बार इसको इसे स्प्लिट कर ले, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? cot ऑफ x प्लस b। और इसको इसे स्प्लिट करो तो क्या कट गया? ये और ये कट गया, क्या बचा? cot ऑफ x प्लस alpha। इसको इसे स्प्लिट करो तो ये हो गया cos थीटा बाय sin थीटा इज cot थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा इज cot थीटा। और जब हम लोग इसको इसे स्प्लिट करेंगे तो देखो पूरा कैंसिल हो गया। अब तुम लोग आंसर बताओ कि इस केस में नीचे जब sin sin है तो क्या यूज करें, sin यूज करें या cos यूज करें? इसका कारण क्या है, देखो एक बार ध्यान से बताइए। इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो आर इंटीग्रेट वो इंटीग्रेट किया जा सकता है, लेकिन इस फॉर्म में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई नोट डाउन। इसका कारण क्या है, नीचे अगर सेम हो, देखो एक बार ध्यान से, इधर मैंने ना एक चीज दिया है यहाँ पे नीचे एस्ट्रिक लगा के, देखो यूज
देखो यूज साइन फॉर सेम एंड कोसाइन फॉर डिफरेंट, मतलब क्या है देखना, जब सेम फंक्शन हो मतलब साइन साइन तो साइन यूज करना है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइन का फॉर्मूला में क्या होता है, ध्यान देना एक बार, साइन का फॉर्मूला में क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। तो होगा क्या फायदा, इसको जब तुम इससे स्प्लिट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कॉट आ जाएगा, और जब तुम इसको इससे स्प्लिट करोगे तो साइन कट जाएगा, कॉट आ जाएगा। समझ में आया? तो अगर नीचे cos cos हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसको जब इससे स्प्लिट कर हम लोग तो c कैंसिल हो गया, टर्म आ गया, इसको इससे स्प्लिट करें तो c कैंसिल हो गया, टर्म आ गया। समझ में आ रही लॉजिक? इसीलिए अगर मान लो नीचे सेम होगा sin sin cos cos तो ऊपर क्या यूज करेंगे, सेम। सेम का इनिशियल s मतलब sin, ऐसे याद करने का तरीका मैंने बना दिया। और अगर डिफरेंट होगा तो cos। क्यों? डिफरेंट होने से cos लेने से फायदा क्या है, फॉर्मूला क्या होता है cos का, cos cos sin sin। तो जब ये इससे स्प्लिट होगा तो cot आ जाएगा, ये इससे स्प्लिट होगा तो tan आ जाएगा। देखिए समझ में आया? तो बात लॉजिक क्लियर होगा सबका? अब ध्यान देना, now after place of 1 I'll be writing sine of x plus alpha minus x plus beta। मैं 1 की जगह पे ये लिख दिया, लेकिन एक बात बताओ, 1 की जगह पे हम कुछ भी थोड़ी ना लिख सकते, बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। तो ये सॉल्व करके देखो तो क्या आता है, इट इज साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब 1 की जगह पे ये लिखा है मैंने, एक्चुअली इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। देखो दिस, इफ यू ओपन द ब्रैकेट इट इज साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे 1 बाई साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड करेंगे। समझ में है सबको? देखो ये लाइन के बाद ये लाइन, सबको देखो एक बार। मैंने देखो एक लाइन में नहीं बताया, बहुत इसके पहले बहुत कुछ बताया पहले लॉजिक। So these are very very important things, otherwise you will not understand this one. मैंने डायरेक्ट भी बता सकते थे हम, डायरेक्ट लेकिन बताया नहीं मैंने। So I think clear है? Next. Now let us apply to quadrant. एक बात बताओ ना, 1 की जगह पे क्या है देखो तो एक बार। 1 की जगह पे क्या है देखो तो एक बार, पूरा क्या है बताओ एक बार, बोलो एक बार। ये 1 की जगह पे यहाँ क्या लिखा है मैंने बताओ। पूरा सॉल्व सिंपलीफाई करो ना पहले, क्या है देखो, मुझे बताने के लिए मैंने लिखा है। now sin of a minus b का फॉर्मूला अप्लाई करो, it is sin a cos b minus cos a sin b। now split with the denominator, so I'm writing directly, okay। इस जो ये जब इससे स्प्लिट होगा ये पूरा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cot of x plus बीटा। ये इससे स्प्लिट होगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cot of x plus alpha। इसके बाद इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। ओके now now can you tell me what is the integration of cot x? Integration of cot x is how much, log of cot sin x। ठीक है, सॉरी इट्स बीटा। क्लियर एवरीवन? उसके बाद जिसको हम लोगों ने अज्यूम किया था
x प्लस बीटा को इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा इफ यू मल्टीप्लाई देयर विल बी नो चेंज। उसके बाद cot ये पूरा को x अज्यूम करें, cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा log of what sin x। जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएशन क्या है 1 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 इफ यू मल्टीप्लाई 1 देयर विल बी नो चेंज। सो दिस इज द आंसर। Copy down everyone. I don't think you have any doubt. I have made each and everything clear I think। कुछ भी देखो सब इतना छोटा है लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं बताया, डायरेक्ट बताते तो समझ में आ जाता लेकिन लॉजिक क्लियर नहीं होता। ऐसा क्यों? तो मैंने सारा चीज पहले बताया कि क्यों ऐसा। देखो मैंने क्या किया थिंकिंग प्रोसेस, देखो तुम देखो थिंकिंग पैटर्न मैंने एक बार में सब नहीं किया, ऐसे करता मतलब अगर तुम लोग भी करता तो ऐसे सोचता पहले फिर सोचता फिर वापस कॉस लेता फिर साइन लेता, ऐसे करके करेक्शन करते करते सब सॉल्व हो जाएगा। और इस तरीके से सम को अगर तुम करोगे तब जाके सम का कांसेप्ट पूरा क्लियर होगा। एक बार ये कॉपी करके और सम नंबर 2 का everyone to number 3 2 का क्वेश्चन नंबर 3 everyone 2 का 3 का हाँ एक ही बात है कॉमन लेके भी ले सकते हो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 3 करना सबको। Have you all done the second I mean the third number sum everyone? ठीक है यहाँ पे आया होगा cot of x plus alpha plus tan of x plus beta आया मतलब इंटीग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नहीं क्या चीज हाँ हाँ उसको इंटीग्रेट करने से आएगा आंसर। वो मैंने बताया ये वाला लाइन तक ये स्टेप मतलब ऐसा आएगा देखना एक बार।
cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, उसके बाद हो जाएगा cos a cos b, ये हो जाएगा cot ऑफ x प्लस अल्फा प्लस tan ऑफ x प्लस बीटा। चेक कर लो तो एक बार इतना तक आया सबका, अब तो हो जाएगा, इतना तक अगर आ गया तो हो जाएगा। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 3 ऑनवर्ड्स। सो एवरीवन, क्या है ट्यूसडे को ट्यूशन होता है ना रात को। ठीक है, मैं ठीक है, एक बार 3 नंबर पहले 3 नंबर एक बार देख लो, 3 नंबर तो हो जाएगा सारा, एक बार पहले एक बार देख लो एक बार सबको यहाँ 3 नंबर जस्ट मिनट। और 3 का नंबर 1 नहीं रहेगा। Now can you tell me how to integrate this particular sum? How to integrate this? Anyone who can explain me? बताओ तो कैसे इंटीग्रेट करोगे इसको? यस, हाँ, सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लेंगे और यहाँ पे x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Now what is integration of x to the power n? It is x to the power n plus 1 by n plus 1, और जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, -3, और -3 का रेसिप्रोकल, समझ में आया? ये तो डायरेक्ट हम लोग चेन लगा के कर सकते हैं। So the answer is minus of 2 minus 3x whole to the power 7 by 3 7 are 21 plus 8. This is clear. So this way you all can complete 3 का all the questions. देखो सारा 3 का 1 का क्वेश्चन में सारा जगह चेन रूल अप्लाई होगा। ओके एवरीवन, देखो एक बार 3 के अंदर जितना क्वेश्चन है सारा में चेन रूल अप्लाई होगा। हाँ, जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया उस पार्ट का डिफरेंशिएशन था रेसिप्रोकल, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बता रहा हूँ, सुनना एक बार, क्वेश्चन नंबर बस मैं 4 का एक सम बता दूं, देन यू ऑल कैन मूव फॉर योर ट्यूशंस। बस आज ये बताने से आज एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट डे से सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, बिकॉज़ बस एक सम बताना है, बस एक सम। इज इज हाँ ओके, मैं एक बार एक बताया, हाँ कॉपी करो फटाफट, बस एक ही टाइप का सम बचा ही है नंबर 4 के अंदर, उसके बाद एक नया टॉपिक शुरू होगा। याद है मैंने बताया था फर्स्ट डे फॉर्मूला, चेन रूल, सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन, दैट इज फॉर नंबर 5। So everyone do sum number 3 का all the questions where you have to apply the concept of chain rule जो मैंने बताया। Now listen here, and this method is also called inspection method। देखना तुम लोग एनसीईआरटी में एक टॉपिक होगा इंटीग्रेट बाय इंस्पेक्शन मेथड, मतलब इंस्पेक्शन मेथड का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूं, पर सुनिए, जैसे मान लो sin 2x है, मान लो तुम लिख दिया इसको माइनस cos 2x प्लस c। अब एक बार डिफरेंशिएट करो, इसका आंसर डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, 2 sin 2x, यहाँ पे 2 है नहीं, तो ये 2 हटाने के लिए यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। इसी मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्पेक्शन मेथड। मतलब हम लोग डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट लगा के इंटीग्रेट कर रहे हैं और फिर डिफरेंशिएट करके चेक करें कि आंसर मैच कर रहे हैं, तो किसके कारण मैच नहीं कर रहे, 2 के कारण, तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दो। बस इसी मेथड को इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं, और मैंने इसको क्या किया, अपना एक नाम दे दिया, टर्म दे दिया, चेन रूल मेथड। क्लियर? नाउ एवरीवन लिसन हियर।
4 का क्वेश्चन को कर लें। See everyone, note down. अगर मान लो किसी भी सम को तुम इंटीग्रेट कर रहे हो और वहां पे क्वेश्चन कैसे दिखेगा, डिविडेंड बाय डिवाइजर की फॉर्म में देखो, डिविडेंड बाय डिवाइजर, clear, and make sure that dividend and divisor is a polynomial. You understand the meaning of a polynomial? Polynomial expression का मतलब पता है तुम लोग को? Polynomial expression means where the power of variable is a whole number is called a polynomial expression, and this you have studied in continuity chapter also. So clearly you find that numerator is a polynomial, denominator is also a polynomial. So अब जो मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो कोई भी चीज, कोई भी इंटीग्रेंड अगर ऐसा फॉर्म में होगा और डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों अगर पॉलिनोमियल है, देन और उसके बाद if the degree of dividend is more than or equal to the degree of divisor, then by long division we express dividend by divisor in the form quotient plus remainder by divisor. I repeat once again. If dividend and divisor both is a polynomial, point number 1. Yes, it is a polynomial because the power is a whole number. If the degree of dividend, what is the degree of dividend? Degree का मतलब पता है क्या होता है? Degree का मतलब होता है highest power of variable. इस न्यूमरेटर में, डिविडेंड में x का हाईएस्ट पावर क्या है? 6. तो न्यूमरेटर का डिग्री क्या है? 6 है. What is the degree of divisor? It is 2. So if the degree of dividend is more than or equal to the degree of divisor, मतलब अगर डिविडेंड का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से बड़ा, ग्रेटर या बराबर, इक्वल हो, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिविडेंड बाय डिवाइजर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो. एक और चीज, बिफोर डिवीजन both dividend and divisor should be arranged in descending order of the powers. Of their powers. Now, what is the meaning of this line? Let's take one example. Suppose we have x to the power 5, x square, x cube, 1 plus x by x square plus 1. Now, just tell me one thing. What is the degree of numerator? What is the degree of dividend? Is it 5? Yes or no? Highest power. What is the degree of divisor? 2. क्या डिविडेंड का डिग्री बड़ा है डिवाइजर से? हाँ बड़ा है, तो डिवाइड करेंगे हम लोग, है ना, और इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. लेकिन डिवीजन से पहले दोनों डिविडेंड और डिवाइजर should be arranged in descending order of the powers. मतलब डिवीजन से पहले टर्म्स को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स में अरेंज करना. मतलब पहले x to the power 5, फिर x cube, फिर x स्क्वायर, उसके बाद फिर x, उसके बाद फिर 1. समझ में आया? तो और डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी है. डिसेंडिंग मतलब पावर को बड़ा से छोटा में अरेंज करना. समझ में आया? तो बात क्लियर? अब देखो लेट्स डिफाइन. क्लास 10 में डिवीजन जो किया जाता है ना, वही करना है. अब मेरे क्वेश्चन तुम लोग से, व्हाट इज मल्टीप्लाइड टू x स्क्वायर टू गेट x टू द पावर 6? बताओ तुम लोग में से कोई रीजन बताओ. x टू द पावर 4, x टू द पावर 6, मतलब 3 दिमाग में आ रहा होगा. x टू द पावर 3 गलत है, क्योंकि
जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, समझ में आया? तो इसीलिए x to the power 4 होगा। अब इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज कर देना, ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। एक और चीज, डिवीजन हम लोग कब तक करते जाएंगे? जब तक रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर का डिग्री से कम ना हो जाए, छोटा ना हो जाए। ना बताओ तुम लोग, कोई तुम लोग में से कि रिमाइंडर यहाँ पे डिग्री क्या है, बताओ तो इसको बताओ। क्या है, क्या है? सॉरी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बताओ एक बार, यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर का बताओ। 4 है, वेरी गुड, बिकॉज x का हाईएस्ट पार्ट 4 है, इसका बड़ा है इससे, तो अभी डिवीजन होगा। कब स्टॉप करेंगे? इसका डिग्री इससे कम हो जाए, इसमें माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से कैंसिल हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर है, देखो यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, अभी भी डिवाइड होगा। क्लियर? अब स्टॉप हो जाएगा, -2, यहाँ पे -2 कांस्टेंट है, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग स्टॉप कर देंगे, और इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? डिविडेंड बाय डिवाइजर को कैसे लिखेंगे? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। बस सारा टर्म्स को अलग अलग कर दो और इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, सारे टर्म्स को अलग अलग करके और बस इंटीग्रेट करना है। तो बताओ तो, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4, x टू द पावर 5/5? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर? इट इज x क्यूब बाय 3। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx? x। और फाइनली 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताओ फटाफट बताओ। It is tan inverse x. This is the solution of this particular sum. So question number 4 के अंदर जितना क्वेश्चन है सब इसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। नाउ जिसका ट्यूशन है, you all can copy and just attend your tuition, इतना ही रहेगा, और फटाफट इसको कॉपी करो। और जिसका ट्यूशन नहीं है वो क्या करो, फोन का नंबर 1 के बाद अभी तुम लोग एक बार फोन का नंबर 2 करो, बस। और आज के लिए इतना ही। ठीक है, कॉपी करो, ये सब कॉपी कर लो, और किसी को अगर डाउट हो तो यू कैन आस्क।